Hello students, welcome to Eco Solutions. Today we will do numericals on national income and related aggregates, where we will learn about calculation of GDP, NDP, GNP, NNP at market and factor cost. If you haven't watched my video or my previous lecture on national income and related aggregates, go watch it first and then come back. Link for the lecture is in the description below. Yes beta, so we are starting with the basic aggregates of national income. Basic aggregates of national income. बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. जो फर्स्ट इसमें आता है वेरियस एग्रीगेट्स में, जो फर्स्ट एग्रीगेट आता है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, gross domestic product at market price. Second component is gross domestic product at factor cost. Okay, third component is net domestic product at market price. Next is net domestic product at factor cost. Okay, next is gross national product at market price. Then gross national product at factor cost. Then net national product at market price. And the last one is net national product at factor cost. At factor cost. Okay, so these are the basic aggregates. All right, gross domestic product at market price, at factor cost, net domestic product at market price, net domestic product at factor cost, gross national product and net national product at factor cost and market price. बेटा सबसे पहले in brief I want to tell you कि what is the difference between domestic product and national product. National product, ठीक है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेटा ये आपको मेरे पहले वीडियोस में भी मिलेगा, वहाँ पर हमने इसको बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है. फिर भी मैं एक बार बताती हूँ तुमको कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि व्हाट एवर is produced by the producers of that country, producers of that economy. Okay, it means I am talking about primary sector, secondary sector, producers of primary sector, secondary sector and tertiary sector. Okay, we are talking about private producers and we are talking about public producers and joint producers. Okay, means
whosoever is there in the economy, in the production units, that will be included here in domestic product. ठीक है. So what is domestic product? Domestic product मतलब whatever is produced by the producers of that economy. ऑल राइट. और नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेशनल प्रोडक्ट थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक नैरो कॉन्सेप्ट है और नेशनल प्रोडक्ट थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज की डेट में सारे इकोनॉमीज़ कैसे हैं? ओपन इकोनॉमीज़ हैं, और हम सारे इकोनॉमीज़ के बाहर के कंट्रीज़ से, बाहर के इकोनॉमीज़ से ट्रेड रिलेशंस हैं, है ना. हम अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को बाहर एक्सचेंज करते हैं ना. तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हम डिफ़ाइन करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जो भी हम अपने गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का है. अगर हमको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो हमको क्या प्लस करना है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है. और अगर हमको नेशनल प्रोडक्ट से क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है तो हमको क्या करना है? माइनस करना है NFIA. तो बेटा आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट. दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? दोनों में जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज़ ऑफ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. Okay, I hope these two terms are clear to you. Now moving to the next term, that is gross product and net product. Gross product and net product. Gross मतलब क्या है? टोटल है. ओके, ग्रॉस इज़ व्हाट? ग्रॉस इज़ टोटल. और नेट क्या है? नेट हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है ना. जब हम प्रोडक्शन करते हैं, सपोज मैंने 100 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया, है ना. हमारा जो प्लानिंग है वो प्लानिंग क्या है कि वी हैव टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है. लेकिन जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने में हमारी कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हमारे को कुछ चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, या उनको बनाते वक्त हमारी मशीनें ख़राब हो जाती हैं. ठीक है. तो वो जो चीज़ है, वो जो ख़राब हुई हैं चीज़ें, है ना, जो बेकार हुई हैं चीज़ें, उसमें हमें क्या हम ऐड करते हैं? हम कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ देयर, है ना. कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. तो ग्रॉस और नेट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है? डेप्रिसिएशन का है. अगर हमें ग्रॉस प्रोडक्ट से नेट प्रोडक्ट में जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है ना. ये क्या है? कॉस्ट क्या है? ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज़ द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है. और नेट से अगर हमें ग्रॉस में जाना है तो हमको क्या करना पड़ता है? प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है. ठीक है बेटा. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज ऑफ NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ होते हैं. ठीक है. अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस NIT करना पड़ेगा. और ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? NIT को प्लस करना पड़ेगा. ठीक है. NIT क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़.
इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर हम सब्सिडीज़ को माइनस कर दें तब हमारे पास क्या आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या होता है, एक बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इट रेफर्स, किसको रेफर करता है, टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year, during a period of one financial year. ठीक है, means what is this, it is the gross market value. What is this market value? Market value मतलब it is factor cost मतलब which we are paying to the factors of production for the use of their services. It means this is the sum of rent, royalty, interest and profit, है ना। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट है। हम बात किसकी कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू की। तो जब भी कोई गुड मार्केट में आती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम बहुत सारे टैक्सेस लगा देते हैं, है ना। दीज टैक्सेस आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और फिर उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं। सब्सिडीज़ को क्यों माइनस कर देते हैं, क्योंकि सब्सिडीज़ आर गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द मोटिवेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, है ना, टू मोटिवेट द प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एड्स प्रोवाइड करती है, कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करती है टू द प्रोड्यूसर्स, सो दैट दीज प्रोड्यूसर्स कैन ईजीली प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं NIT। ठीक है, तो व्हाट इज मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बेटा आई टोल्ड यू कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, है ना। तो मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना होता है तो NIT को माइनस करना होता है, और अगर फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस में जाना होता है तो NIT को प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या है, फैक्टर कॉस्ट और उस पर जो भी टैक्सेस और सब्सिडीज़ हमको मिले हैं या हमने लगाए हैं उनका डिफरेंस, विच इज़ नोन एज NIT ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country during a period of 1 year. ठीक है बेटा, तो is this clear कि what is this gross domestic product? All right, ठीक है बेटा। Now one more thing I can say here कि in gross word क्या है, in gross depreciation is added। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऐड किया हुआ होता है ना। ये देखो यहाँ पर हमने ग्रॉस में हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया है, और अगर हम नेट की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस किया होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट GDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट, कि इट इज़ द मनी, ग्रॉस मनी वैल्यू, it is gross money value of all the
final goods and services produced within the domestic territory of a country, ठीक है, during a period of 1 year। ठीक है बेटा, ये क्या है, बिल्कुल हमारे पहले डेफिनेशन के जैसे है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर GDP at FC is equal to GDP at MP minus NIT। देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने मार्केट प्राइस नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बस खाली मनी वैल्यू, मतलब मनी वैल्यू है बट नॉट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया। नाउ इट विल बिकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बेटा, आफ्टर दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट at market price। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अब ये क्या होता है, इट रेफर्स टू नेट, देखो बच्चे, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें ग्रॉस वर्ड लिखना है और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, नेट वर्ड लिखना है। ठीक है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है NDP एट MP, तो मैं क्या करूँगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस क्या कर दूँगी मैं, डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, NDP एट MP बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या है, इट रेफर्स, बिल्कुल किसकी डेफिनेशन उठानी है हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। बस यहाँ पर हमने क्या वर्ड लिखा है, ग्रॉस लिखा है, और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, वर्ड नेट वर्ड लिखना है। तो हमें क्या लिखना है कि इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू of all final goods and services ठीक है, produced within the domestic territory
domestic territory of a country during a period of 1 year। ठीक है बेटा, इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी कि NDP at FC is equal to NDP at MP minus NIT। कैसे कैलकुलेट करूँगी मैं इसको? NDP at MP minus NIT। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और इसको मैं कैसे भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, GDP at MP माइनस डिप्रिसिएशन माइनस NIT, है ना। ये क्या है, हमारा बेस वैल्यू है, GDP at MP है। तो GDP at MP से ही अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, GDP at MP माइनस डिप्रिसिएशन, ये क्या बन गया मेरे पास, NDP at MP बन गया। और जब इसमें से मैं माइनस कर दूंगी NIT तो इट विल बिकम NDP at FC। ठीक है बेटा। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। ठीक है बेटा। अगर याद आ रहा है तो मैंने पहले बताया तुमको कि डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। डोमेस्टिक और नेशनल में, डोमेस्टिक मतलब क्या है, विच इज़ प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ऑल राइट। और नेशनल को हम क्या बोल सकते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। तो इसको हम एक डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या है वो डेफिनेशन, कि इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year, during a period of 1 year। देखो बेटा, यहाँ पर क्या चीज़ नई है, नई क्या चीज़ है, नई चीज़ है नॉर्मल रेजिडेंट्स, है ना। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ये भी हमने पहले अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि हु इज़ नोन एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। दिस नॉर्मल रेजिडेंट मतलब हु इज़ वर्किंग फॉर द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। सो वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाई द नॉर्मल रेजिडेंट दैट विल बी एडेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर इसको मैं फॉर्मूला फॉर्म में देखूं तो मैं कैसे इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ, GNP एट MP, बेसिक चीज़ हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, GDP एट MP हम ले रहे हैं। ठीक है। अगर इसमें मैं NFIA प्लस कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम नेट gross national product at market price. Now the next concept is gross national product at factor cost, at factor cost। ठीक है बेटा। फैक्टर कॉस्ट बिल्कुल डेफिनेशन में देयर विल बी नो चेंज। क्या डेफिनेशन रहेगी हमारी, कि इट रेफर्स टू, इंस्टेड ऑफ मार्केट वैल्यू इट विल बिकम, इट रेफर्स टू, क्या लिखेंगे हम, टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services
services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. ठीक है, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँगी तो क्या होगा, GNP at FC इज़ इक्वल टू, बेस क्या है हमारा, GDP at मार्केट प्राइस माइनस NIT प्लस NFIA, है ना. GDP में से अगर इसको मैंने माइनस किया तो ये क्या बन गया, GDP at FC बन गया. और अगर इसमें मैंने ये प्लस कर दिया, NFIA प्लस कर दिया, तो ये क्या बन गया, GNP at FC बन जाएगा. ठीक है बेटा. आफ्टर दिस नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, बिल्कुल इसको याद करो. देखो पुराना अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, NNP at MP इज इक्वल टू, अब हमारा बेस क्या है, GNP at MP माइनस डिप्रिसिएशन. ठीक है बेटा. अगर इसको मैं GDP से भी कैलकुलेट करूँगी तभी भी ये मेरे पास आ जाएगा. GDP at MP में से मैंने क्या माइनस किया, डिप्रिसिएशन. ये क्या बन गया मेरा, NDP at MP बन गया. ठीक है. अगर इसमें मैंने प्लस किया NFIA तो इट विल बिकम NNP at MP. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल goods and services produced by the normal residents of a country during a given period of time. During a period of 1 year. पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक है. इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, NNP at FC इज इक्वल टू GNP at MP माइनस डिप्रिसिएशन. ये क्या हो गया हमारे पास, NNP at MP हो गया. ठीक है. और अगर मैं माइनस कर दूँ इसमें से NIT तो इट विल बिकम NNP at FC.
ठीक है। और अगर मैं जीडीपी में लेती हूँ अपना बेस, तो ये क्या होगा, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये क्या बन गया मेरे पास, एनडीपी एट एमपी बन गया। ठीक है, माइनस मैंने किया एनआईटी, तो ये क्या बन गया मेरे पास, एनडीपी एट एफसी बन गया। और प्लस किया मैंने एनएफआईए, तो ये क्या बन गया, एनएनपी एट एफसी बन गया। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल अबाउट दीज concepts. Okay, these concepts. Okay, do practice these questions based on this, and if you have any doubt, please comment in the description box or call me at the given number. And for more practice questions, link is in the description. If you like the video, like it and subscribe to Eco Solutions